is now being recorded. Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So in our last lecture, we are discussing about the programmings of 8051 and we are seeing some simple programmings of performing data transfer and arithmetic operation in the end. So we have ended the program. We have ended our lecture in the last lecture. We have seen this program also of adding, subtraction, multiplication and division. Then we have also done some simple programs related with addition of two numbers which are stored at memory location, and we have to store the result also at some other memory location. So till now we have seen also in the end we have seen the 16-bit number addition also. In the end we have also completed the addition of two 16-bit numbers, how to add two 16-bit numbers and store the result of these 16-bit numbers in a 16-bit register which is known as DPTR register, data pointer register. So for that we have to add lower byte and store the result in lower byte DPTR, that is DPL, and we have to similarly add the upper byte of these two numbers and store the result in upper byte of this DPTR register, DPH. So till now we have completed uh, in the simple programming related with data transfer and arithmetic groups. Now today we are going to see some more examples related to these operations only, and also we are going to see the logical operation program also. So this is the continuation part of your previous lecture which we are doing the programming related to 8051 microcontroller. Now, what is the next program? Let us see. Please understand this program. This program is to multiply two 8-bit numbers 23H and 15H. Assume suitable memory address to store the result. So, in this program, you have to multiply the two 8-bit numbers which are 23H and 15H. So, these are the two numbers. Directly, the numbers is given to you. You have to just multiply these two numbers. So we have to multiply this 23H and 15H, and after the multiplication, whatever the result you will get, you have to store that result at a suitable memory address, at a particular memory address. You can take any memory address location. You can consider any memory location address. So first of all, we have to initialize the program org 000H, starting your first memory location address, starting the program from first memory location address. Then move a comma hash 23H. What is the meaning of this instruction? What is the meaning of this instruction? The immediate data 23H will move in accumulator. So this is your first data which you have to multiply 23H. So you have immediately taken this data in which register? Accumulator. So move a comma hash 23H means what? You are immediately loading the accumulator with the first data of multiplication, that is 23H. Similarly, for multiplication, we have to take the second data in which register? B register. So move B comma hash 15H means what? You are immediately loading the B register. You are immediately loading the B register with number 15H. So the second number of multiplication is 15H. So you have taken that number in B register. So move B comma hash 15H means what? Immediately 15H is loaded in B register. So you have taken the first data, second data. Now you have to just multiply those numbers. So the instruction which is used in 8051 microcontroller for multiplication is only this multiplication AB. No other instruction is valid other than this. So only valid instruction in 8051 microcontroller for multiplication is MULAB, MULAB, means you have to perform the multiplication of the data which are stored in accumulator and B register only. So we have taken those number in accumulator and B register previously above. Now we have just multiplied this with the help of multiplication instruction. Now as you know very well, after the multiplication, the results in stored in which register? In accumulator and B register only. The lower byte of the result is stored in accumulator and the upper byte of the result is stored in B register. मान के चलो आपका नंबर जो है वो बड़ा आ गया, 16 बिट का आ गया. आपने मल्टीप्लाई किया था 2 8 बिट नंबर, लेकिन 2 8 बिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर आ गया 16 बिट में. तो 16 बिट में आंसर आया तो लोअर बाइट जो है वो कहाँ पे रहेगा? एक्यूमुलेटर में रहेगा, और अपर बाइट जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? बी रजिस्टर में रहेगा. तो आपको क्या करना है? आपको सुटेबल मेमोरी लोकेशन में भेजना है उसको. तो यू कैन टेक एनी मेमोरी लोकेशन एड्रेस. तो आप पे आपने क्या किए?
आपने इंस्ट्रक्शन क्या यूज कर रहे हैं, मूव 35h, A। तो मूव 35h, A का मतलब क्या होता है, जो लोअर बाइट ऑफ रिजल्ट है उसको आप 35h मेमोरी लोकेशन पे भेज रहे हो, और सिमिलरली जो अपर बाइट ऑफ रिजल्ट है उसको आप कौन से मेमोरी लोकेशन पे भेज रहे हो, 36h पे। तो लोअर बाइट ऑफ आंसर इन 35h, अपर बाइट ऑफ आंसर इन 36h। तो इस तरीके से आपने क्या किए, ये जो दो नंबर दिया हुआ था उसका मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किए, और मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके आपने रिजल्ट को भी प्रॉपर मेमोरी लोकेशन पे भेजे। कौन सी मेमोरी लोकेशन पे, 35H एंड 36H पे। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट पहुंच गया पर्टिकुलर सुटेबल मेमोरी लोकेशन पे। नाउ यू हैव एंडेड द प्रोग्राम। So in this way, the program is going on in microcontroller 8051. After you clear your instruction sets, जब आपका instruction sets clear हो गया है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉपरली पूछ रहा है आपसे, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को यूज करो, इस्तेमाल करो इन योर प्रोग्रामिंग। तो जैसा आपको कंटेंट दिया हुआ है, जैसा आपको पूछा जा रहा है, वो हिसाब से आप गो थ्रू कर, वो हिसाब से आप प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करो और प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करो। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन था। नाउ वी हैव टू सी द सिमिलरली द प्रोग्राम फॉर डिवीजन आल्सो। तो यहाँ पे डिवीजन में क्या दिया हुआ है, आप देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते दिया हुआ है। ये जो सारे क्वेश्चन जो दिए हुए वो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ टाइप का चेंजेस करके दिया हुआ। कभी बोलता है कि आप खुद से मेमोरी एड्रेस को सिलेक्ट करो, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ही बोल देता है कि आप यहाँ से ये मेमोरी लोकेशन से डेटा को लो, उनको परफॉर्म करो, फिर इसका रिजल्ट वो मेमोरी लोकेशन पे भेजो। तो ये सब तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको समझ में आना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर वो हिसाब से ही आपको प्रोग्रामिंग करना है, आंसर देना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू डिवाइड टू 8 बिट नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट एट 40H एंड 41H। तो अब ये देखो, ये बिल्कुल लास्ट सिमिलर प्रोग्राम के जैसा ही है। अब इसमें लेकिन क्या बोल दिया इसने, इसमें आपको ना मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे दिया जहाँ पे रिजल्ट को स्टोर करना है। प्रीवियस वाले एग्जांपल में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस नहीं दिया था, यहाँ पे एड्रेस लोकेशन नहीं दिया था, यहाँ पे हमने खुद से सुटेबली क्या किया, एज्यूम किया कहाँ पे भेजना है, एक्यूमुलेटर का रिजल्ट और बी रजिस्टर का रिजल्ट। लेकिन इन दिस प्रोग्राम, ये जो अभी क्वेश्चन आपके सामने जो डिवीजन का आ रहा है, इसमें आपको पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा है कि आपको रिजल्ट जो है वो 40H और 41H मेमोरी लोकेशन पे भेजना है। तो वी हैव टू स्टोर द रिजल्ट इन दिस मेमोरी लोकेशन ओनली। बाकी आपको डेटा नहीं दिया हुआ है। उससे वाले एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल में, इससे पहले वाले एग्जांपल में डेटा दिया था जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन करना था। अब इस प्रोग्राम में आपको डेटा नहीं दिया है, ना तो कहीं से बोला है कि यहाँ मेमोरी लोकेशन से लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना है, यू कैन हैव राइट टू चूज एनी डेटा। अब आपके पास राइट है, आप कोई भी सुटेबली डेटा को एज्यूम कर सकते हो, वो डेटा को लो, उसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करो और रिजल्ट को भेजो। तो जैसा कि आपको स्टार्ट में यहाँ पे वही नजर आएगा, इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम का स्टार्ट जो होता है वो हमेशा ORG से होता है। तो ORG 0000H फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर आगे आपका मूव A,78H। तो यहाँ पे आपने क्या कर रहे हो, मूव A,78H मतलब क्या, आप एक्यूमुलेटर को इमीडिएटली लोड कर रहे हो कौन से नंबर से, 78H से। तो आपने जो फर्स्ट डेटा है जो डिवीजन करने के लिए, वो आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर में ले लिए, मूव A,78H। तो 78H इज योर इमीडिएट डेटा लोडेड इन एक्यूमुलेटर। सिमिलरली आप बी रजिस्टर में दूसरा डेटा ले रहे हो, मूव B,07H। तो बी रजिस्टर में आपने इमीडिएटली लोड किया, जिससे डिवाइड करना है आपको, तो वो नंबर आपने क्या किया, 07H। यानी अब आप क्या कर रहे हो, 78 को डिवाइड कर रहे हो 7 से। 78 is the hexadecimal number. You are dividing this 78H with 07H. ओके, फिर इसके बाद आपने डिवीजन का इंस्ट्रक्शन लेके आए। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ए बी है, उसी तरीके से डिवीजन में भी सिर्फ डिवीजन ए बी है। इसके अलावा और कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं है डिवीजन परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी आप दूसरा रजिस्टर यूज करोगे बी के अलावा, तो आपको इनवैलिड इंस्ट्रक्शन माना जाएगा। तो इन 8051 इंस्ट्रक्शन सेट द ओनली इंस्ट्रक्शन फॉर डिवीजन इज डिवीजन ए बी, DIV AB। तो ये इंस्ट्रक्शन का यूज करके आपने डिवीजन परफॉर्म किए। और आपको पता है जब डिवीजन परफॉर्म करते हो तो रिजल्ट इसका ऐसा नहीं आता है डायरेक्टली, अगर आप 95 डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो 9.5 आएगा। नो, द आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फॉर्म में आपको रिजल्ट आएगा। तो जो क्वेश्चन है वो आपको एक्यूमुलेटर में मिलेगा, और जो रिमाइंडर है वो आपको बी रजिस्टर में मिलेगा। इसलिए दो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बोला है रिजल्ट को भेजने के लिए। तो जो क्वेश्चन का रिजल्ट आया है डिवीजन करके, जैसे कि हमें आपको बताया था 95 डिवाइड बाई 10 करते हो तो क्वेश्चन इज 9, रिमाइंडर इज 5।
तो वैसे ही जो क्वेश्चन अभी इसका जो डिवीजन परफॉर्म करोगे, तो इसका डिवीजन परफॉर्म के जो क्वेश्चन होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में होगा। उस एक्यूमुलेटर से आपने उसको सेंड किए, कहाँ पे सेंड किए, कौन से रजिस्टर पे, कौन से मेमोरी लोकेशन पे भेजे, 40H। सिमिलरली जो रिमाइंडर था आपका बी रजिस्टर में था, उस बी रजिस्टर से आपने उसको कौन से मेमोरी लोकेशन पे भेज दिया, 41H पे। तो ये मूव 40H, ए मतलब डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है मेमोरी लोकेशन का, तो वहाँ पे आपका जा रहा है एक्यूमुलेटर का रिजल्ट। उसी तरीके से बी रजिस्टर में जो रिमाइंडर का रिजल्ट है वो जा रहा है आपका 41H मेमोरी लोकेशन पे। So in this way, we have performed the division of the numbers and stored the result in a suitable memory location which was given in your question. तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 40H और 41H, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर है? डाउट है क्या कुछ किसी को इसमें डिवीजन वाले में? एनीबडी हैविंग डाउट? अब ये जो दो प्रोग्राम समझा उसमें किसी को डाउट है क्या, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का? है तो पूछो मुझे, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। क्लियर है? क्लियर समझू फिर मैं? एनी रिस्पॉन्स? कोई तो रिस्पॉन्स दो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो। क्लियर सर। ओके ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में आता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये पूछा हुआ था आपके सैम्पल पेपर में और बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आया हुआ था। ये प्रोग्राम क्या दिया हुआ है, जो बीसीडी एडिशन वाला, जो जिसके लिए हम लोग को स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया था। चलो पहले प्रोग्राम को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू बीसीडी नंबर्स write a program to add two BCD numbers 66H and 95H। तो ये दो BCD नंबर्स बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स 66H और 95H का क्या करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है और स्टोर करना है। अच्छा सॉरी, स्टोर्ड इन एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3000 एंड 3001H। यानी ये जो नंबर्स है 66H और 95H, ये स्टोर किए हुए है कौन से, एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस दिया हुआ है 3000H एंड 3001H। यानी ये जो डेटा आपको जो दिख रहा है 6695H, ये डायरेक्टली इमीडिएटली आपको नहीं लेने का है, ये आपको लेना है मेमोरी लोकेशन 3000 एंड 3001H से। खाली इसने इस सब प्रोग्राम में बताया कि जो बीसीडी नंबर आपको ऐड करना है 66H 95H, वो स्टोर किया हुआ है, वो रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3000H एंड 3001H पे। तो वहां से आपको ये डेटा को लेके आना है, ये नंबर को लेके आना है, उस मेमोरी लोकेशन से लेके आना है, उन दोनों के बीच में बीसीडी एडिशन परफॉर्म करना है और फिर इसके बाद क्या करना है, स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशन 3002H। वही फिर रिजल्ट को एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3002H पे भेजना है। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं भी देता तो भी चलता था, ये 66H और 95H डेटा नहीं भी देता तो चलता था हमारे लिए। सीधा सीधा बोल देता था राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू बीसीडी नंबर्स विच आर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 3000 एंड 3001H और फिर उसके बाद आफ्टर परफॉर्मिंग द एडिशन स्टोर द रिजल्ट एट 3002H। तो ये जस्ट कंफ्यूजन पार्ट करने के लिए उन दोनों नंबर को भी दे दिया, स्पेसिफाई किया। हालांकि अभी हमको ये अपनी प्रोग्रामिंग में ये दो नंबर से लेना देना नहीं है, जब उसने मेमोरी लोकेशन मेंशन कर दिया तो हमको मेमोरी लोकेशन से ही लेके आना है, हमको डायरेक्टली इमीडिएटली अब ये डेटा लेके एडिशन परफॉर्म नहीं करना है। अगर ये नहीं देता था एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन से स्टोर है तो हम फिर डायरेक्टली ले लेते थे इमीडिएटली और उनका एडिशन परफॉर्म करते। लेकिन अब जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है विच आर अवेलेबल, जो कहाँ पे है, कौन से मेमोरी लोकेशन पे, 3000 एंड 3001H पे, तो हमको वहीं से फिर डेटा को लेके आना है। अभी क्योंकि आगे चल के हमको मेमोरी लोकेशन में 3002H में भी तो रिजल्ट को भेजना है ना, स्टोर जो करना है रिजल्ट उसको भी तो कहाँ पे भेजना है, 3002H पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ इसमें, सबसे पहले ORG0000H यानी स्टार्टिंग ओवर प्रोग्राम फॉर फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, पहले मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो जब एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन है तो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कितने बिट का है, 16 बिट का है। तो 16 बिट के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हमको रजिस्टर भी जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, 16 बिट वाला रजिस्टर लगेगा। और 16 बिट वाला रजिस्टर कौन सा है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में, DPTR, डेटा पॉइंटर। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले सेंटेंस में ही आपको क्या नजर आएगा,
मूव डीपीटीआर हैश 3000h, मतलब आप क्या कर रहे हो, डीपीटीआर डेटा पॉइंटर रजिस्टर को इमीडिएटली लोड कर रहे हो कितने के एड्रेस से, 3000h के एड्रेस से, क्योंकि 3000h पे आपका पहला डेटा है ना, जब बीसीडी एडिशन करने के लिए जो पहला डेटा है वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे, 3000h पे। तो डीपीटीआर जो पॉइंट करेगा 16 बिट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, इसके लिए सबसे पहले डीपीटीआर को लोड करना पड़ेगा उस नंबर से, उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस से। तो हम लोग ने क्या किया, डीपीटीआर में इमीडिएटली क्या लोड कर दिए, 3000h को लोड कर दिए। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ने वो एक्सटर्नल मेमोरी है, इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको क्या नजर आएगा, मूव एक्स नजर आएगा। ये जो एक्स स्टैंड हो रहा है क्योंकि वो जो 3000h है वो कौन से मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, एक्सटर्नल मेमोरी का। तो हमको जो डेटा मूव कराना है वो एक्सटर्नल मेमोरी से मूव कराना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यूज होगा इंस्ट्रक्शन में, मूव एक्स। तो मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट डीपीटीआर, यानी डीपीटीआर जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना है, यानी डीपीटीआर जो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में अब क्या आ जाएगा, 66h आ जाएगा, क्योंकि 66h कहाँ पे था, 3000h पे था। तो डीपीटीआर जो 3000h को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा यानी 66h वो कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। अब आपने क्या किए, फिर उसको थोड़ा सा घुमा दिए, एक्यूमुलेटर से उसको कहाँ पे लेके आ गए, कौन से एक रजिस्टर में ले लिए, R2 में ले लिए, क्योंकि अभी आपको दूसरा नंबर भी लेके आना है ना। तो इसके लिए आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर को कोई दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर दिया, वापस से एक्यूमुलेटर में दूसरा नंबर आएगा, तो इसके लिए एक्यूमुलेटर को खाली कर दिए। खाली कर दिए मतलब आपने कॉपी करवा लिए एक्यूमुलेटर से कहाँ पे, कोई दूसरे रजिस्टर पे, R2 पे। यानी फर्स्ट डेटा जो आपका 66h है अब आपने उसको कहाँ पे रख दिया है, सेफली R2 रजिस्टर पे। तो मूव R2 कॉमा है यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट R2 में आ गया। फिर आपने क्या किए, INC। अभी देखो ये सब चीज आपको आ रहा है, अभी प्रोग्रामिंग में समझ में आ रहा है, सब जितने इंस्ट्रक्शंस हम लोग ने पढ़े थे तो इस तरीके से सब अरेंज होता है प्रोग्राम में। ऐसा हम लोग को लॉजिक सब लगाना पड़ता है, दिमाग में करना पड़ेगा कि अभी नेक्स्ट क्या करूँ, नेक्स्ट कैसे क्या करना है। तो अभी आपको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है ना, 3001 में एच पे जाना है, तो आप जस्ट एक इंस्ट्रक्शन यूज करो ना, INC। INC स्टैंड फॉर व्हाट, कौन बताएगा, INC स्टैंड फॉर व्हाट, INC स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्या मतलब इसका, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बराबर, सही बोल रहा हूं मैं, कोई जवाब देगा मुझे, यस सर। कौन बोला यस सर, कौन बोला यस सर। सर इंक्रीमेंट डेटा, रुको, हाँ मैं बोल दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सही बोल दिया यस सर, हाँ प्रोग्रामिंग में नहीं इंडियन नहीं, नेशनल कांग्रेस आएगा। क्या कैफ यार, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट अभी किसको इंक्रीमेंट करना है, डेटा पॉइंटर को। ये बाजू में डेटा पॉइंटर रजिस्टर है, ये INC स्टैंड करता है किसके लिए, इंक्रीमेंट के लिए, पढ़ा चुका हूँ सब, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में। तो कितने से इंक्रीमेंट करेगा डेटा पॉइंटर को, ये बाजू में जो डीपीटीआर रजिस्टर लिखा हुआ है इसको इंक्रीमेंट करेगा, तो कितने से इंक्रीमेंट करेगा, 1 से। तो जो 3000 था तो 3000 के बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा 1 से, तो 3000 क्या बनेगा वो, 3000 के बाद क्या हो जाएगा, अरे दूसरे लोग सब सोए हुए क्या, 3001। 3001 बराबर ना, तो बोलने का ना, बोलते नहीं तुम लोग, 3001h। तो INC DPTR मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट डेटा पॉइंटर। तो इंक्रीमेंट डेटा पॉइंटर जो डेटा पॉइंटर 3000 था वो अब क्या हो जाएगा, 3001h हो जाएगा। ओके ठीक है, मैं मैसेज वेज भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, भले से मैसेज में जवाब दो लेकिन जवाब दो। सो इंक्रीमेंट डेटा पॉइंटर, तो डेटा पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया 1 से, तो ये हो गया 3001h। तो आप क्या करना है फिर, आप वापस से आपने वही यूज किया इंस्ट्रक्शन, मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट डीपीटीआर। आप डीपीटीआर जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा एक्यूमुलेटर में, तो आप डीपीटीआर कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 3001h को। तो 3001h में क्या है आपका सेकेंड डेटा 95h है, वो 95h उठा के कहाँ पे आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटर में। अब आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर में सेकेंड डेटा आ चुका है और R2 रजिस्टर में पहला डेटा था आपका कौन सा, 66h। तो डायरेक्टली आपने कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया, ऐड। तो ऐड ए कॉमा R2, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और R2 रजिस्टर का कंटेंट दोनों को ऐड करेगा। अब जो आपने ऐड किए ये नॉर्मल एडिशन हुआ, तो अगर आपको BCD एडिशन करना है तो BCD एडिशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है,
जो आपके आंसर को बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? टेल मी प्लीज, कौन सा इंस्ट्रक्शन आफ्टर एडिशन, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है जो आपके रिजल्ट को, अगर इनवैलिड बीसीडी वगैरह नंबर आएगा तो उसको करेक्ट बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? विच इज द इंस्ट्रक्शन? कौन सा इंस्ट्रक्शन है वो? टेल मी, जवाब जवाब चाहिए, जवाब। मैसेज पे जवाब दो या ऑडियो पे जवाब दो, जवाब दो लेकिन। अरे दिख रहा है बाबा, इसके नीचे ही लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम में ही लिखा हुआ है। क्या है ये? कौन सा इंस्ट्रक्शन है ये? डेसिमल एडजस्ट DAA। हाँ, DAA फुल फॉर्म। विक्कू क्या बोल रहा था, तू बता जरा। डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। वेरी गुड, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर मतलब ये क्या कर देगा, आपके आंसर को करेक्ट बीसीडी फॉर्म में लेके आएगा। अगर कोई एडिशन परफॉर्म करके इनवैलिड बीसीडी जनरेट होता है, इनवैलिड बीसीडी जैसा कि आपको पता है, अगर ग्रेटर देन सम 9 आता है या कैरी जनरेट होता है तो उसको इनवैलिड बीसीडी माना जाता है। तो उसको करेक्ट बीसीडी करने के लिए हम लोग ऐड 6 करते हैं। ये सारा मैंने आपको समझाया था अपने इंस्ट्रक्शन टाइप में। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। आपने एडिशन परफॉर्म किए, दोनों नंबर का एडिशन परफॉर्म करके आपको करेक्ट बीसीडी फॉर्म में लेके आना है, तो आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा? डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर करके आपने अपने रिजल्ट को करेक्ट बीसीडी फॉर्म में लेके आ गए, और वो आपका जो आंसर है वो अभी एक्यूमुलेटर में है। फिर से आपने क्या किया, अब आपको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 3002H में भेजना है ना उसका रिजल्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से INC DPTR को इंक्रीमेंट करोगे 1 से, तो 3001H था इससे पहले, अब क्या हो जाएगा, 3002H हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर से डेटा मेमोरी लोकेशन पे पहुंचाना है। तो MOVX @DPTR, यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ पे जाएगा, वहां पे जहाँ पे DPTR जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो DPTR कौन सी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अब 3002H पे। तो इस तरीके से आपने क्या किए, दो नंबर का एडिशन परफॉर्म किए, उसके आंसर को बीसीडी में लेके आए, और बीसीडी में लेके आने के बाद उसको आपने सेफली एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3002H पे भी भेज दिया। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आया कैसे प्रोग्रामिंग होता है, क्या होता है, क्या लॉजिक लगाना पड़ता है? यस सर। यस सर। प्लीज ये सब चीज़ पे जरा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, तो अगर आप लोग एक्टिव रहोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ बंद कर दो काशी, म्यूट कर दो, अच्छा है। मैसेज पे जवाब दो तो अच्छा है। लास्ट प्रोग्रामिंग है मेरे ख्याल से इसका, टुडेस लास्ट प्रोग्राम, ये लेक्चर का लास्ट प्रोग्राम जो लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? और XOR। हाँ कुछ नहीं सर। कुछ बोल रहे थे क्या, और एक क्या बोल रहे थे? नहीं सर। आवाज आ जाती है मुझे, और एक प्रोग्राम आ गया। नहीं, एंड और XOR बोल रहा था। यस बराबर है, एंड और XOR है। तो अभी एंड और XOR जो अभी तक हम लोग ने देखे नहीं ना इसका, लॉजिकल ऑपरेशन का, तो ये एक ही प्रोग्राम है लॉजिकल ऑपरेशन का। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन का प्रोग्राम देख के तो ये लेक्चर का एंडिंग होगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम टू परफॉर्म एंड और एंड XOR ऑपरेशन ऑन टू डेटा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एंड लॉजिक, और लॉजिक और XOR लॉजिक परफॉर्म करना है ऑन टू डेटा। डेटा 1 इज एट इंटरनल रैम लोकेशन 40H एंड डेटा 2 इज एट एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 2000। देखो क्वेश्चन की डीपनेस देखो, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। पहले बोल रहा है कि जो डेटा 1 है वो इंटरनल रैम लोकेशन 40H पे है, और जो डेटा 2 है वो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन कहाँ पे है, 2000H पे। यानी दोनों का इस्तेमाल करना है आपको, इंटरनल पॉइंट करने के लिए इंटरनल रजिस्टर, एक्सटर्नल पॉइंट करने के लिए एक्सटर्नल वाला। तो ये सब चीज़ आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे होता है, क्या होता है। तो इंटरनल डेटा, जो इंटरनल मेमोरी लोकेशन पे पहला डेटा है, 40H वाले पे पहला डेटा है, एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 2000H पे सेकंड डेटा। फिर उसके बाद क्या बोला है, स्टोर द रिजल्ट एट 3 सक्सेसिव लोकेशन इन इंटरनल रैम, दैट इज 50H, 51H एंड 52H। और इसके बाद जो आपको रिजल्ट जो स्टोर करना है, यानी एंड लॉजिक का रिजल्ट कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है, 50H पे, और लॉजिक का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, 51H पे, और XOR का रिजल्ट जो स्टोर करना है वो कहाँ पे स्टोर करना है, 52H पे।
तो इस तरीके से देखो जरा प्रोग्राम की डीपनेस देखो कैसे ये प्रोग्राम आपको दिया हुआ है। हालांकि प्रोग्राम बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, कैसे करना है, क्या यूज करना है। तो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ORG0000H। अब आपको मालूम है जब एक्सटर्नल मेमोरी का नाम आ गया, एक्सटर्नल मेमोरी में जब सेकंड डेटा है, तो अब उसको पॉइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा पॉइंटर का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो डेटा पॉइंटर को आपने इनिशियलाइज किए जो मेमोरी लोकेशन एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन के नंबर से, तो मूव DPTR हैश 2000H। तो DPTR में आपने क्या लोड किया इमीडिएटली 2000H, ताकि DPTR कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सके 2000H। फिर आपने क्या किए, वो DPTR का जो कंटेंट है, जो मेमोरी लोकेशन को कंटेंट पॉइंट कर रहा है, DPTR जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट आप कहाँ पे लेके आ गए, उसको एक्यूमुलेटर। ठीक है ना। तो जो सेकंड ऑपरेंड का जो नंबर था उसको आपने कहाँ पे लेके आ गए, एक्यूमुलेटर में लेके आ गए, क्योंकि सेकंड डेटा आपका कहाँ पे था, 2000H पे था। तो आपने DPTR से पॉइंट करवा के वहां से कॉपी करा के कहाँ पे लेके आ गए, उसको एक्यूमुलेटर। अब आप क्या कर रहे हो, इंटरनल मेमोरी लोकेशन को भी तो पॉइंट करना है। तो इंटरनल मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए आपने कौन सा रजिस्टर यूज किया, R0, क्योंकि R0 R1 ही यूज होता है पॉइंट करने के लिए इंटरनल मेमोरी की। तो आपने क्या किए, R0 को किससे लोड किए, 40H से, जो इंटरनल मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 40H। तो मूव R0 हैश 40H। अब डायरेक्टली आपने क्या किए, एंड लॉजिक इस्तेमाल कर दिए, यानी प्रोग्राम को लेंथी करने से अच्छा सीधा डायरेक्टली आप यहाँ पे ही क्या कर दो, एंड लॉजिक परफॉर्म कर लो। एंड लॉजिक ANL ए, यानी ए में जो कंटेंट है उसके बीच में एंड @R0। तो R0 किधर पॉइंट कर रहा है, कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, R0 कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, टेल मी। 40H। R0 40H बराबर, क्योंकि 40H में पहला डेटा है ना, तो हमने यस। R0 में 40H लोड कर दिया है। तो अब R0 किधर पॉइंट कर रहा है, 40H मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो 40H का डेटा, एक्यूमुलेटर का डेटा, दोनों का एंड लॉजिक हो गया, और रिजल्ट अभी कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। लेकिन अब उसको कहाँ पे स्टोर करना है, भेजना कहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन से मेमोरी लोकेशन पे भेजना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड लॉजिक का जो आंसर है वो कौन से मेमोरी लोकेशन, 50H पे भेजना है। तो इसलिए देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, मूव 50H 50H A। ए, यानी एक्यूमुलेटर से आपने इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 50H मेमोरी लोकेशन। हो गया सीधा सीधा। अब वापस से आप क्या करो, एक्यूमुलेटर में वो डेटा लोड करो, क्योंकि वही दो डेटा के बीच में और लॉजिक भी परफॉर्म करना है, एक्सऑर भी करना है। अब एक्यूमुलेटर में डेटा चेंज हो गया था, तो आप दोबारा वापस से उसको कॉपी करा लो। तो मूव एक्स ए @DPTR। तो DPTR तो वही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 2000H को। तो 2000H का जो डेटा है वो वापस से एक्यूमुलेटर में आ गया। अब सीधा कौन सा परफॉर्म कर लो, और लॉजिक परफॉर्म कर लो, ORL A, @R0। तो R0 तो वही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, 40H को ही पॉइंट करेगा। तो वही डेटा के बीच में अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, और लॉजिक परफॉर्म हो गया। और लॉजिक परफॉर्म करके अभी भी रिजल्ट कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। अब उसको कौन से मेमोरी लोकेशन पे भेज दो, 51H। 51H। तो 51H पे भेज दिया। फिर वापस से आपने क्या करना है, एक्सऑर परफॉर्म करना है। तो इसके लिए वापस से एक्यूमुलेटर में वो डेटा लेके आओ DPTR से, DPTR से पॉइंट होके आ रहा है। तो मूव एक्स ए @DPTR। तो वापस से आपने वो मेमोरी लोकेशन से पॉइंट करवा के अपने डेटा को लेके आ गए। अब आ गया आपका एक्यूमुलेटर में। फिर क्या करना है आपको, एक्सऑर लॉजिक परफॉर्म करना है। तो XRL A, @R0। तो आपने वही परफॉर्म किए, एक्सऑर लॉजिक परफॉर्म किए, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और जो मेमोरी लोकेशन को R0 पॉइंट कर रहा है, हो गया उसका रिजल्ट। फिर वापस से आपने कहाँ पे भेज दो, 52H पे भेज दो। तो इन दिस वे, वेरी आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपने क्या किए, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म किए। तो कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया इसमें, एंड लॉजिक, और लॉजिक, एक्सऑर लॉजिक, और रिजल्ट को सेफली स्टोर किया जो मेमोरी लोकेशन में बोला गया था। समझ में आया आप लोगों, ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? यस सर। नाउ द टर्न इज टू आइटम MCQ सेट 2। तो MCQ सेट 2 को देख लेते हैं। तो दिस इज अ सेट 2 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ एक्यूमुलेटर F0H देन आफ्टर CPLA एक्यूमुलेटर क्या होगा। अगर एक्यूमुलेटर में इनिशियली F0H था, तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट A इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करोगे तो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? FFH। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो 1 है उसको क्या करेगा, अच्छा OFH।
जो 1 है उसको 0 करेगा, जो 0 है उसको 1 करेगा। 1 करेगा। तो आपके पास F0H है, तो क्या आएगा आंसर? 0FH। वेरी गुड। क्या आएगा? 0FH। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी नहीं आएगा मेरे भाई। F0 का F0H कैसे रहेगा? F0H का F0H नहीं रहेगा। आपका F0 का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, जो 1 है उसका 0 हो रहा है, और जो 0 है उसका 1 हो रहा है। तो ये चारों 0 का चारों 1 हो जाएगा, F हो जाएगा भाई। चारों 1 का चारों 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 0F। समझ में आई बात आप लोग को? क्लियर? यस सर। जो लोग 0F बोल रहे थे, सॉरी F0 बोल रहे थे, वो नोट कर लो, 0FH आएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ इधर पे। मूव ए कॉमा हैश 40H। एक्यूमुलेटर में आप इमीडिएटली 40H को लोड कर रहे हो। फिर आप ANL परफॉर्म कर रहे हो, एंड लॉजिक परफॉर्म कर रहे हो एक्यूमुलेटर और वही इमीडिएट डेटा 40H से। बात समझ में आई क्या हो रहा है इसमें? आप एक्यूमुलेटर में लोड किए 40H इमीडिएटली, फिर आप एंड लॉजिक परफॉर्म कर रहे हो एक्यूमुलेटर और इमीडिएट नंबर दिया हुआ है 40H। तो यानी दोनों भी 40H के बीच में एंड लॉजिक परफॉर्म हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर कंटेन्स। तो जब ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके बाद एक्यूमुलेटर क्या कंटेन करेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या 80H? यस। ओके। और कोई दूसरा कोई बता सकता है? और किसी के पास कोई दूसरा आंसर है तो बता दे जल्दी से। किसी के पास कोई दूसरा आंसर है तो बता दे जल्दी से। सर क्या या ऑप्शन? तो ऑप्शन ए या 48। तो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन बी, या तो ऑप्शन डी, या तो सब ऑप्शन हो सकता है। हाँ बोलो, क्या बोली थी 48। श्रद्धा? क्या? नहीं सही से नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा तुम्हारा आवाज, समझ में नहीं आता मुझे। क्या बोल रहे? कौन सा ऑप्शन? मैसेज पे लिख देने का, मैसेज पे देख रहा हूँ मैं, मैसेज देख रहा हूँ। यहाँ पे तो या तो करके तो सभी आ सकता है, या तो ए, या तो बी, या तो सी। श्रद्धा ने बोला है 40H। श्रद्धा ने बोला है 40H। सब लोग एग्री है क्या 40H आंसर आएगा? सब लोग एग्री है 40H आंसर आएगा? करेक्ट है क्या 40H? या तो फिर सब लोग बोलेंगे नहीं, या तो सर 80H हो सकता है, या तो 20H हो सकता है, या तो 00H। हैंड लॉजिक का मतलब पता है ना आप लोग को? व्हाट डू मीन बाय हैंड लॉजिक? अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर यस। एक भी इनपुट 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 आएगा। ओके तो बोला ना ये, सर 00H। अरे तो लेकिन बाबा 40H में एक 1 नहीं आता है क्या? 00 कैसा हो जाएगा? दोनों भी 40H है। अब देखो, मैं तुम लोग को यहीं से सीधा हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तुम लोग कैसे एड़े जैसी बात करते हो? दोनों भी नंबर सेम है कि नहीं है? 48 दोनों नंबर सेम है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ। हाँ है सर। 40H वो भी है, 40H ये भी है, तो व्हाट विल बी द आंसर? 40H। 40H ही रहेगा मेरे भाई। 1 into 1 1 ओनली। ये विक्कू है ना फुकट। अरे क्या तुम लोग कुछ भी, तू डबल कर देता है, 1 + 1 2 करके 80 बता रहा है, कोई बोलता है 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, ऐसे कैसे? अरे 40H में आपका नंबर ही देख लो ना, ये 0 1 0 0 0 0 0। इसी तरीके से दूसरा वाला नंबर भी तो वही है ना, 0 1 0 0। तो जब परफॉर्म होगा लॉजिकल एंड तो दोनों बिट सेम ही है, तो दोनों बिट सेम के हिसाब से जहाँ पे दोनों 1 1 है वहां पे तो 1 ही आएगा ना, वहां थोड़ी 0 हो सकता है। 4 का तो पता है ना आपको, बाइनरी फॉर्म 0 1 0 0। तो जो डिजिट सेकंड नंबर की डिजिट जो 1 है तो वो तो 1 दोनों में रहेगी ना, तो उसका 1 एंड 1 लॉजिकल 1 करके 1 ही आएगा। तो आंसर विल बी 40H। करेक्ट आंसर इज 40H। आप लोग करके देखना खुद से नोटबुक में, समझ में आएगा। 40H लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो 40H आंसर मिलेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इधर पे क्या दिया हुआ है? मूव ए कॉमा हैश 03H। एक्यूमुलेटर में आपने इमीडिएटली 03H लोड किया। मूव बी कॉमा हैश 05H। फिर आपने बी रजिस्टर में 05H को लोड किया। फिर इसके बाद आपने मल्टीप्लीकेशन ए बी किया, MUL ए बी। तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन किया। फिर क्या पूछ रहा है? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बी कंटेंट्स। वाओ, क्या दिमाग 05H। से क्वेश्चन सब दे रहा 05H। है। अच्छा कितना? 05। 05H। 05H।
तुम लोग भूल गए क्या? मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट जो स्टोर होता है वो क्या क्या स्टोर होता है, नहीं मालूम तुम लोगों को? देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए बी करके मैंने आपको बार बार समझा चुका हूँ। मल्टीप्लिकेशन ए बी करके जो रिजल्ट है आपका लोअर बाइट एक्यूमुलेटर में रहता है और अपर बाइट कहाँ पे रहता है? बी रजिस्टर में। तो जब आप 03H 05H का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 03H 05H ये दोनों हेक्साडेसिमल में, अगर हेक्साडेसिमल में तो यही नंबर डेसिमल में भी यही रहता है 03H 05H। तो आप नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई करो 3 5 कितना होता है? 3 5 कितना होता है? 15 15 ना, तो 15 वो आपका डेसिमल में हुआ। तो डेसिमल का हेक्साडेसिमल कितना होगा? 15 डेसिमल का हेक्साडेसिमल कितना होगा? 15 डेसिमल का हेक्साडेसिमल कितना होगा? अरे 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, FH 14 का ई, तो 15 का एफ। क्या Yes, यार, क्या FH तुम लोग कैसे ऐसा गिन लिया करो, ऐसे याद रख लिया करो तुम लोग। तो जो आपका जो आंसर आया 15 वो हेक्साडेसिमल में FH होता है। तो FH इज लोअर बाइट, लोअर बाइट में काफी है वो। 16 बिट आंसर थोड़ी आया आपका। आपका आंसर कितना आया? 8 बिट ही आया ना। तो लोअर बाइट में आपका क्या है? 0FH, वो आपका एक्यूमुलेटर में रहेगा। और अपर बाइट आंसर इज नथिंग 00, तो वो आपका कहाँ पे रहेगा? बी रजिस्टर में रहेगा। तो इसके लिए बी रजिस्टर में क्या रहेगा आपका? 00, क्योंकि अपर बाइट आंसर नहीं आया। आपका आंसर कितने में आया? सिर्फ 8 बिट में आया, दैट इज 0FH। समझ में आया? तो जब ये बड़ा नंबर होगा ना मल्टीप्लाई करने में, तो आपको 16 बिट में आंसर आएगा, तो वो अपर बाइट फिर आपको बी रजिस्टर में मिलेगा। तो ये जो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बी क्या कंटेन कर रहा है? तो रजिस्टर बी आपका जाहिर सी बात है 00H कंटेन करेगा, क्योंकि रिजल्ट ही आपका कितना आया है? 8 बिट आया है, 0FH आया है। तो 0FH अकेला खाली आपका एक्यूमुलेटर में दिख जाएगा। तो बी रजिस्टर में आपका खाली रहेगा, क्या रहेगा? 00H रहेगा। तो क्लियर, समझ में आया अभी आप लोगों? ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर जो है लोअर बाइट एक्यूमुलेटर में रहता है, अपर बाइट बी रजिस्टर में रहता है। तो ये जो डेटा जो दिया हुआ था 03H 05H, तो ये 03H 05H ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 8 बिट में ही आएगा। वो एक्यूमुलेटर में रहेगा, बी रजिस्टर खाली रहेगा, 00H ही रहेगा। बी रजिस्टर में कुछ नहीं रहेगा, 00H। Okay. लेट अस सी आवर आंसर आल्सो, जो मैंने हाइड कर दिया था। तो पहले वाले का आंसर बी बता रहा है, यहाँ पे F0H बता रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। तो ये जो आंसर आपको ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया 0FH। तो कॉम्प्लीमेंट करोगे F0H का, तो कॉम्प्लीमेंट करके एक्यूमुलेटर F0H नहीं देगा, 0FH देगा। ठीक है, क्लियर? ये नोट कर लेना आप लोग। MSBT गलती कर रहा है सर। MSBT गलती करता है ना, मैं सुधारता हूँ ना उसको। मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? काल से कर में क्यों सर आप? MSBT गलती करेगा तो मैं इधर बैठा हूँ ना करेक्ट करने के लिए। क्या बात है सर। गलती करने वाला इंसान ही है, कोई दूसरा नहीं है। कोई वहाँ पे कोई महान पुरुष नहीं है, कोई भी। वो भी बनाया हुआ है, कोई लेक्चरर ही है, उसने ही बनाया हुआ है। तो गलती हो गई उससे, CPLA। तो कॉम्प्लीमेंट ए करके क्या आएगा आंसर आपका? 0FH। ओके, सेकंड वाले का आंसर जो 40H था, बी करेक्ट आंसर, जो मैंने आपको बताया। एंड लॉजिक परफॉर्म करोगे 40H और 40H में, तो आंसर यही आएगा 40H। थर्ड वाले आंसर में जो इतनी लंबी बहस चली उसके ऊपर, जो आंसर कोई दे नहीं पा रहा था, बी रजिस्टर में क्या होगा बताना बताना करके आंसर नहीं आ रहा था। कौन बताएगा कौन बताएगा, कोई बता नहीं पाया। लास्ट में मुझे ही बताना पड़ा। तो आंसर आया क्या उसका? 00H, क्योंकि बी रजिस्टर में कोई अपर बाइट नहीं रहेगा। तो क्लियर है यहाँ तक? ऑल ऑफ यू गॉट इट? समझ में आ गया? Yes sir. So that's all for today's lecture. Thank you very much for your joining only, not attending, not participating in lecture. Just thank you for joining and attending the lecture. Okay. चलो ठीक है, कोई ना कोई बहाने बस आ जाया करो, ज्वाइन कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर।